Hello everyone. So today I'm going to discuss with you about the sample question paper for grade 12 students. Subject is information technology and subject code is 802. So it is the latest syllabus according to 2020 and 2021 session. So for this there is a theoretical part is of 60 marks, from which 10 marks is of employability skills and 50 marks will be from the other units. So these are the general instructions, and after that there is pattern of the question papers. So first is section A. Section A will consist objective type questions, that will be of 30 marks, and section B of subjective type questions, that will be of 30 marks. So total 60 marks. So here in section 1, section A, first is section has 6 questions. Okay, means in the section A there will be having 6 questions, total 6 questions, and there is no negative marking. Do as per the instructions given, and marks allotted are mentioned against each question or part. And in section B, total there will be 18 questions, and from these 18 you have to attempt 11 questions. There will be choices, and in section A objective type questions, you can see that as written there will be in section A total 6 questions, and in those 6 questions you will be getting each subpart. Okay, so now first is that answer any 4 out of given 6 questions on employability skills. You have to answer any 4 out of 6 questions. Okay, and inside the 6 questions you will be having another question. So from this you have to attempt 4 questions. First is, you can see that it is important to clearly communicate instructions, ideas and concepts that can help you find success in any career. Say true or false. So yes, मीन्स इट इज़ आस्किंग कि क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी भी जॉब में सक्सेस के लिए जो आपकी कम्युनिकेशन है, इंस्ट्रक्शंस या आइडियाज़, आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो नेसेसरी है। मीन्स आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपके करियर में आपके जो आइडियाज़ हैं, जो आपकी कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन है, वो क्लियर होनी चाहिए। तो येस, इट इज़ ट्रू कि किसी भी जॉब या करियर में आपके जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, और जब आप कम्युनिकेट करो तो आपकी इंस्ट्रक्शंस वो क्लियर होनी चाहिए। Second is, all formula in spreadsheet begin with dash sign. मीन्स जब भी आप स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल डॉक्यूमेंट में जब भी आप फॉर्मूलाज अप्लाई करते हो सेल्स के डेटा में, ठीक है, सेल्स में, तो दैट जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कौन से ऑपरेटर से स्टार्ट होता है, इज इक्वल्स टू। फॉर एग्जाम्पल आपको सम करना है, सो यू विल बी राइटिंग फर्स्ट इज इक्वल्स टू ऑपरेटर एंड देन यू विल बी राइटिंग दैट फॉर्मूला. Third is dash work is collaboration with green builder to lay the idea and how the building will look like after its completion. They also provide artistic beauty to buildings to make them look innovative and interesting. So what we call it, green design professionals, कि वो कौन होते हैं जो किसी भी बिल्डिंग को डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, कि कैसी बिल्डिंग दिखनी चाहिए, कैसे आप किसी भी बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इनोवेटिव बना सकते हो, तो ये काम कौन करते हैं, ग्रीन डिज़ाइन प्रोफेशनल्स. देन देयर इज़ लिस्ट वन बेनिफिट ऑफ टीम बिल्डिंग. अगर आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो, आपकी एक टीम है, तो टीम बिल्डिंग क्यों ज़रूरी है, इसके लिए आपको एक बेनिफिट लिखना है. तो इससे क्या होता है, बूस्ट मोरल एंड लीडरशिप स्किल्स. अगर आप टीम को वेल मेंटेन करके चलते हो, आपकी टीम में क्या है, बहुत ही अच्छी टीम बिल्डिंग है, एक यूनिटी के साथ आप वर्क करते हो, तो इसका बेनिफिट क्या है कि आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो इंक्रीज होती है. ठीक है. Fifth one is dash is feeling extremely nervous and worried because you believe that other people do not like you or are trying to harm you. अगर किसी भी पर्सन के इनसाइड ऐसा फियर है, ठीक है, कि वो हमेशा चिंता करते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ पर सोचते हैं कि जो दूसरे लोग हैं उनको उनके बारे में गलत सोचते हैं या फिर उनको हार्म करना चाहते हैं, तो ऐसी थिंकिंग किन लोगों की होती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, पैरानॉइड. ओके, पैरानॉइड. Then there is personality affects all aspects of an individual's performance and list any two personality traits. तो आपको 2 personality traits बताने हैं, any two. तो जो personality traits हैं वो कौन से होते हैं, extraversion, agreeableness, consciousness,
इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, तो ये सारे क्या हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है कि जो आपकी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है। ठीक है, लाइक अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप अंदर ही अंदर अपनी चीज़ों को सोचते रहोगे बट अपने थॉट्स को क्लियर नहीं कर पाओगे सामने। एक्स्ट्रावर्जन का मीनिंग क्या होता है कि आप अपने जो थॉट्स है आप दूसरों से सोशली कम्युनिकेट करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तो ये आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था, सी फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास पार्ट्स हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चंस है, 1 क्वेश्चन के साइड 6 सब क्वेश्चन, सब पार्ट हो गए उनके। सो अगेन इन सेकंड क्वेश्चन यू विल बी हैविंग 6 क्वेश्चंस अगेन, सिमिलरली इन थर्ड, सो लाइक दिस यू विल बी हैविंग टोटल 6 क्वेश्चंस। ओके, so in second question you will be having total 7 question and you have to attempt any 5. Okay, so first one is dash command is used to modify the value of attribute of one or more tuple in a table। कि कमांड कौन सी आप यूज़ करते हो अगर आप किसी एक एट्रीब्यूट को एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट को टेबल में किस कमांड के थ्रू आप अपडेट कर सकते हो। तो किस कमांड के थ्रू कर सकते हैं, अपडेट कमांड के थ्रू। कीवर्ड यूज टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, अगर आपने स्ट्रक्चर बनाना है टेबल का, ठीक है, तो उसके लिए क्या कीवर्ड यूज़ करते हो, डिस्प्ले करवाने के लिए टेबल का स्ट्रक्चर, ओनली स्ट्रक्चर डिस्प्ले करवाने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज़ करोगे, डिस्क्राइब। देन देयर इज डैश मेथड ऑफ अ स्ट्रिंग क्लास रिटर्न्स ट्रू इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 0। तो ऐसी कौन सी क्लास होती है जो स्ट्रिंग की जो क्लास है उसको रिटर्न करेगा ट्रू अगर लेंथ होगी स्ट्रिंग की 0। तो कौन सी क्लास होती है, इज एम्प्टी। थर्ड इज डैश constraint is used to restrict the values of an attribute within a range, so you have to the constraint is check constraint। check constraint के थ्रू क्या करोगे आप, ये यूज़ कर, हम क्यों यूज़ करते हैं चेक constraint कि आप वैल्यूज़ को रिस्ट्रिक्ट कर सको कि इसी रेंज में वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, एक स्पेसिफिक रेंज में अगर आप वैल्यू चाहते हो तो उसके लिए कौन सा constraint यूज़ करोगे, चेक constraint। वट आर मेंबर मेथड्स, मेंबर मेथड्स क्या होते हैं, आंसर मेथड्स डिक्लेयर्ड इन अ क्लास आर मेंबर मेथड्स, कि जो आप क्लास के अंदर मेथड्स को डिक्लेयर करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर मेथड्स। गिव वन ऑनलाइन वेबसाइट ऑफ B2C बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट, you can write any website, so here we have written the Pepperfry। okay, then what is the importance of password field on online reservation site। पासवर्ड के लिए, पासवर्ड क्यों ज़रूरी है किसी रिजर्वेशन साइट के लिए, ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखता है, सो इट कीप्स द इन्फॉर्मेशन सिक्योर। आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन अगेन you have to answer any 6 out of given 7 questions। okay, so predict the output, here is the what given program is given, some instructions are given and you have to find out the output। so here it is written int x equals to 9 and k equals to 0, int y equals to 10। so in the next line there is y is equals to plus plus x, means it is increasing value of x, so in this case y will become 10। after that x plus equals to y, x plus equals to y, you can also write is x equals to x plus y। so x equals to x is 9 and y is, x is now x is 10 and y is also 10, so 10 plus 10 is equals to 20 and k equals to x, and again we are having x is equals to 20, so k the value of k will become 20। okay, in second dash is an e-commerce application where the customer can purchase goods over the internet। कौन सी वेबसाइट के थ्रू आप गुड्स परचेज कर सकते हो इंटरनेट में, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के थ्रू। नाउ देयर इज dash phase of web application development, problem statement for which the web application is to be developed is identified। so there is first phase, that is requirement। select distinct department name from department, आपको select करना है डिपार्टमेंट में से डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम। एंड वाई डज द अबव क्वेरी डू, ये जो क्वेरी है, ये क्वेरी दी हुई है एक कि आपको सेलेक्ट करना है डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिस्क्राइब, क्वेरी क्या करती है ये, सो इट गिव द डिपार्टमेंट नेम एट्रीब्यूट वैल्यूज ऑफ ऑल टपल्स विदाउट रेपिटेशन, रेपिटेशन नहीं होगी इनकी वैल्यूज में। देयर इज डिफाइंड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है, यूज टू चेक दैट डेटा एंटर्ड इन वन रिलेशन इज कंसिस्टेंट विद द डेटा एंटर्ड इन अनदर रिलेशन, कि दो जो टेबल्स में आपको डेटा लिखोगे वो क्या है, कंसिस्टेंट होना चाहिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज्ड,
If A is greater than equals to B, so this greater than equals to B is which kind of operator it is? It is relational operator. Seventh, e-business offers advantages and opportunities. There are also risks and barriers. These include violation of consumer privacy, spikes causing websites to fail at peak times, internet hackers penetrating company security, all of the above, that is all of the above. After that, there is question number 4. Again, in this also you have an answer any 5 out of given 6 questions. You have to answer any 5. So what is an object? What is an object? Instance. Okay, object is an instance of a class. For example, you are creating a class, and inside that class you are creating an object. So that object is we call it instance of a class. Second is predict the output. So in this program you have to predict the output. After that, define shopping cart. So it is quite easy. What do you mean by shopping cart? जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे शॉपिंग कार्ट का क्या मीनिंग है, दैट यू हैव टू राइट इन इट. After that, there is dash is not an aggregate function. So round, this is not aggregate function. Dash replaces zero or more number of random character when used with like keyword. This is modulus, this percentage symbol. 6. Dash is a special method that every Java application must have. Main method. Main method is very important because whenever you run Java program, the statements you will be writing inside this main method that will execute first. So main method is very important. After that, question number 5. Again, you have to attempt any 5 out of given 6 questions. Okay. So dash phase of web application development problem statement for which the web application is to be developed is identified requirement. So some questions has been repeated over here. Dash method of a string class return the index of first occurrence of given substring. So this is index of. Dash command which displays list of databases available on the current server. So show databases. अगर आप database देखना चाहते हो SQL में तो show databases के help से आप देख सकते हो. Define data redundancy. Duplicacy of data को हम क्या बोलते हैं? Redundancy. Same information is stored in more than one file, which result in wastage of space. Fifth is dash is a collection of raw facts which have not been processed to reveal useful information, that is data. 6. Dash method test whether this string end with the given suffix. So answer is ends with. 6. This is the last question of section A. So answer any 5 out of given 6 questions. Which SQL keyword is used to sort the result? So order by. अगर आपको sorting करनी है SQL में, so command उसके लिए क्या होगी? Order by keyword. ठीक है, keyword कौन सा होगा? Order by. सेकेंड, डैश कमांड डिलीट्स द टपल्स फ्रॉम अ टेबल. अगर आपको किसी टेबल में से एसक्यूएल में अगर किसी टेबल में से आपको क्या डिलीट करने हैं? ओनली टपल्स डिलीट करने हैं. ठीक है, तो उसके लिए क्या कमांड यूज होगी? डिलीट. डिफाइन जेवीएम. जेवीएम इज अ जावा वर्चुअल मशीन. ये क्या करता है? ट्रांसलेट करेगा बाइट कोड को मशीन कोड में एंड देन एग्जीक्यूट इट. फोर्थ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस. सो टू स्टार्ट एन ऑनलाइन कोडिंग कोर्स फॉर 3 मंथ्स. अगर आपको 3 मंथ्स का ऑनलाइन कोडिंग कोर्स करना है तो ये ई गवर्नेंस एप्लीकेशन में नहीं आता. ई गवर्नेंस में कौन सी एप्लीकेशन आ जाती है? जो गवर्नमेंट के अंडर होती हैं. फिफ्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन. ठीक है, इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होगी? जो आप फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, जो डिजिट से स्टार्ट करेंगे हम वेरिएबल को डिजिट से स्टार्ट करके नहीं कर सकते. Sixth is name one front end and one back end application to create web applications. So front end के लिए Java NetBeans and back end के लिए MySQL. ठीक है. Next is section B, that is subjective type questions, means you can say that long type questions. So इसमें क्या होगा? फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 5 में से. ठीक है, 5 में से 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से 6 मार्क्स का आएगा. ठीक है, सेक्शन ए में से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में से 4 मार्क्स का आ जाएगा और इसमें से 6 मार्क्स का आ जाएगा. सो सेवेंथ क्वेश्चन में संदीप हैज़ टू अपीयर फॉर हिज फर्स्ट जॉब इंटरव्यू. मेंशन एटलीस्ट 2 पॉइंट ही शैल कीप इन माइंड बिफोर अपेयरिंग. तो अगर कोई भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है तो उसके लिए आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं. तो आप कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो कि आपको वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है, योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी गुड. ठीक है, यू शुड नॉट फील नर्वस
in between the interview, ठीक है. And there are many more points you can add. Get a good night's sleep, do research. जहाँ भी आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है उस कंपनी के रिगार्डिंग आप रिसर्च करके जाओ. ईट अ गुड ब्रेकफास्ट, प्रिपेयर क्वेश्चंस बिफोर हैंड. ओके, नो हु विल बी इंटरव्यूइंग एंड लर्न अ बिट अबाउट देयर बैकग्राउंड. नो योर स्ट्रेंथ्स एंड पुट टुगेदर अ लिस्ट ऑफ देम. स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के बारे में आप स्टडी करके जाइए. सेल फोन को ऑफ करके रखिए. प्रिपेयर अ सॉलिड लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस. ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो इनमें से पॉइंट्स फॉलो करने हैं. और आपको 2 पॉइंट्स लिखने थे तो आप कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकते हो. एट्थ है सेल्फ मोटिवेशन इज सिग्निफिकेंट इन बिल्डिंग्स वन पर्सनालिटी. कमेंट आंसर. सो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही नेसेसरी है. सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेटेड पर्सन हमेशा पॉजिटिविटी उसमें होती है. ठीक है, सो सेल्फ मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्रीज इंडिविजुअल एनर्जी एंड एक्टिविटी. आपकी एनर्जी को इंक्रीज करता है और अगर आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी तो आपकी जो एक्टिविटीज़ होंगी, जो आप टास्क करोगे वो आप मोर एनर्जेटिकली करोगे और बहुत ही फास्ट करोगे. तो आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना है. इट डायरेक्ट्स एन इंडिविजुअल टूवर्ड्स स्पेसिफिक गोल्स. आप अपने गोल्स की तरफ बहुत ही अच्छे से ध्यान दे सकते हो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ मोटिवेटेड अगर आप रहोगे तो आपके जॉब करियर में भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग होगा. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज सेल रेफरेंसिंग इन अ स्प्रेडशीट. So a cell reference identifies a cell or range of cells. Each cell in the worksheet has a unique address formed by the combination of its intersecting row and column. When a cell address is referred to in a formula, it is called cell referencing. ठीक है. Question number 10. Rohan has a successful startup company. According to him, decision making is considered to one of the important entrepreneurial competency. Do you agree with Rohan's opinion? Justify. Yes. अगर रोहन ने कंपनी ओपन की है सो रोहन इज आस्किंग कि जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या हेल्पिंग है. यस. अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, अपने करियर में कंपनी ओपन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ठीक है, अगर आप बिजनेस में हो तो. 11th is what is the role of water quality technician. So water pollution is in its alarming state. This has given rise to the need of water quality technicians to help monitor the water quality and treat it. तो वाटर पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी बढ़ता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए और वाटर की क्वालिटी अच्छी हो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए जो वाटर क्वालिटी टेक्नीशियन है उनका रोल होता है. So after that there is that answer any 3 out of given 5 questions. You have to write any 3 out of 5 questions. So again there are many choices you will be having in your question paper. Then there is explain drop table with cascade command. आपको drop table explain करना है. drop table में क्या होता है कि जब आप drop table command यूज़ करते हो पूरा आपका जो टेबल होता है विद द डेटा वो डिलीट हो जाता है. ठीक है, सो आपको cascade ऑप्शन के साथ बताना है. So drop table will be dropped and with the cascade option, that is all the constraints that refer to this table would also be automatically dropped. ड्रॉप टेबल साथ अगर आप कास्केड ऑप्शन यूज़ करोगे तो जो आपने टेबल में कंस्ट्रेंट लगाए हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, जो भी कंस्ट्रेंट लगाए हैं वो सारे भी रिमूव हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 13, द फॉलोइंग कोड हैज़ सम एरर. आपको एक कोड दिया उसमें एरर है, एरर आइडेंटिफाई करना है. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14, दैट इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है. तो जो इक्वल्स टू है दिस इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड डबल इज इक्वल्स टू इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर. फॉर एग्जांपल अगर इंट ए इक्वल्स टू 10 लिख रहे हो तो इसका मतलब कि आप ए को जो वैल्यू है 10 वो असाइन कर रहे हो वेरिएबल को. वेरएज अगर ए इक्वल्स टू 10 लिख रहे हो तो ये चेक करेगा कि क्या ये वैल्यू 10 है, ए के इक्वल है, मतलब ए जो है वो वैल्यू जो है वो 10 है या नहीं है. ओके. क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन सेक्टर. तो एजुकेशन सेक्टर के अकॉर्डिंग आपको वर्क इंटीग्रेटेड का बताना है. ठीक है, सो फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन सच ए स्टूडेंट डिटेल्स. अगर आपको स्टूडेंट का डिटेल्स, मार्क्स, रिजल्ट स्टोर करवाना है तो उसके लिए वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आपको पता होना चाहिए. स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन, फैकल्टी स्टाफ मेंबर की इन्फॉर्मेशन, स्कूल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर की डिटेल, इन सब के लिए जो वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग है एजुकेशन सेक्टर में कैसे यूज़फुल हो सकता है वो सब है. क्वेश्चन नंबर 16, अ कंपनी इज मेकिंग डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग पर्सनल डिटेल्स एंड सैलरी डिटेल. ठीक है, सो पर्सनल डिटेल हैव कॉलम्स. अगर पर्सनल डिटेल्स है उसमें क्या कॉलम्स हो सकते हैं? एम्प्लॉय की आईडी, नेम, एड्रेस, ब्लड ग्रुप, सैलरी. ठीक है, तो आंसर में क्या है? एम्प्लॉय आईडी, बेसिकली प्रोजेक्ट डिटेल्स, डिडक्शंस, अलाउंसेस. ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 16 में बेसिकली क्या था कि पर्सनल डिटेल्स के कॉलम में एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, ब्लड ग्रुप, हमें सजेस्ट करने हैं कॉलम सैलरी टेबल के लिए। तो सैलरी टेबल के लिए आप क्या लिख सकते हो, एम्प्लॉय का आईडी, उसकी लीव, सैलरी बना रहे हो तो लीव भी आएगा, प्रोजेक्ट डिटेल्स, उसके डिडक्शंस, अलाउंसेस, ठीक है, सारे इंक्लूड हो जाएगा। आफ्टर दैट आंसर एनी टू ऑफ द गिवन 3 क्वेश्चंस, 30 to 50 वर्ड्स में लिखने हैं। ई गवर्नेंस डस एम्पावर्स द सिटीजन, गिव 3 पॉइंट्स। आफ्टर दैट अगेन देयर इज सम while predict the output of the following code, also categorize the loop as entry exit control loop। ओके, एंट्री एग्जिट कंट्रोल लूप इसमें बताना है। तो इसके हमें क्या दिया हुआ है इसमें, एंट्री कंट्रोल लूप, दिस इज द आंसर। कैटेगराइज करना है हमें लूप की एंट्री या फिर एग्जिट कंट्रोल है, so this is the entry control loop। And question number 19, mention at least 2 work areas which uses database management system। so database management system कहाँ यूज़ कर सकते हो, स्कूल में कर सकते हो, होटल में कर सकते हो, कंपनीज में कर सकते हो, रेलवेज, एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इन सब में आप यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट देयर इज आंसर एनी 3 आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चंस इन 50 to 80 वर्ड्स। सो आपको क्या दिया हुआ, एक टेबल दिया हुआ है, एसक्यूएल कमांड के थ्रू आपको इसमें क्रिएट करना है। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग से कैसे। देन देर इज क्वेश्चन नंबर 21, इन द क्वेश्चन नंबर 21 दैट ऑनलाइन लर्निंग के क्या बेनिफिट हैं और आप किस तरह से ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हो, एंड 2 एजुकेशनल वेबसाइट्स आपको राइट डाउन करनी है। इन क्वेश्चन नंबर 22 यू हैव टू राइट एरिया ऑफ स्क्वायर यूजिंग जावा प्रोग्राम and differentiate between return type, method, argument with a suitable example. This question is having 2 parts, okay। now question number 23 that अमन ने शॉप करने शूज़ ऑनलाइन, तो क्या उसको स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। इन क्वेश्चन नंबर 24 you have to write java program to display area of square, and question number 2 in this question only that you have to write what are the comment entries in java, कि comment क्या होते हैं जावा प्रोग्रामिंग में, एंड वेज जो होते हैं कमेंट्स आप कैसे लिख सकते हो जावा प्रोग्रामिंग में, वो आपको बताना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेटेस्ट क्वेश्चन सैम्पल पेपर फॉर IT subject, and you can also download this PDF from cbse.nic.in website। Keep learning and thank you so much।